تصور کریں ایک ایسے ملک میں جہاں ٹویوٹا ہمیشہ اپنی بڑی کاروں اور عظیم برانڈ کے لیے جانا جاتا تھا، اب ایک چھوٹی نظر آنے والی کار نے پوری مارکیٹ میں ہلچل مچا دی ہے۔ جی ہاں، ہم ہونڈا ان باکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو جاپان میں مسلسل نمبر 1 فروخت ہونے والی کار رہی ہے۔ کیا یہ مان لیا جائے کہ اب ٹویوٹا کا دور ختم ہونے والا ہے؟ اس چھوٹے سے ڈبے نما گاڑی میں ایسا کیا ہے جس نے لوگوں کے دل جیت لیے اور ٹویوٹا جیسی دیو ہیکل کمپنی کو بیک فٹ پر کھڑا کر دیا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جو اسے دوسری کاروں سے مختلف اور خاص بناتی ہے؟ اور یہ کار دیگر کار کمپنیوں سے مختلف کیوں ہے؟ آج الیکٹرک کا دور ہے، پھر بھی لوگ ہونڈا کی اس پیٹرول کار کو کیوں پسند کر رہے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہونڈا ان باکس کے پیچھے کیا ہے اور یہ ٹویوٹا کے لیے کس طرح درد سر بن رہا ہے۔ اور ہاں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سب سے پہلے ایسی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جاپان میں سب سے زیادہ بکنے والی کار کون سی ہے تو شاید اب بھی ٹویوٹا کسی مہنگی الیکٹرک کار کے بارے میں سوچیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جاپان میں جو گاڑی پچھلے کئی سالوں سے نمبر 1 کرسی پر بیٹھی ہے وہ ہے ہونڈا ان باکس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چھوٹی نظر آنے والی کار میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے اتنا مقبول بنا رہی ہے؟ سب سے پہلے فروخت کے اعداد و شمار کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر ہم گزشتہ چند سالوں کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو جاپان میں ہر سال ان باکس کے لاکھوں یونٹ فروخت ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ 2023 میں اس نے تقریباً 2-3 لاکھ یونٹ فروخت کیے اور پہلے نمبر پر رہا۔ یہ ایک دفعہ کا معجزہ نہیں ہے، بلکہ یہ گاڑی کئی سالوں سے مسلسل بک رہی ہے، یعنی لوگ اسے ہر سال خریدنا پسند کر رہے ہیں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب لوگ گاڑی پر اعتماد کریں۔ اب بات کرتے ہیں صارفین کے اعتماد کے بارے میں۔ جاپان کے لوگ بہت سمجھداری سے چیزیں خریدتے ہیں۔ وہ غیر ضروری طور پر مہنگی چیزوں پر پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ وہ ایک ایسی کار چاہتے ہیں جو سستی ہو، اچھا مائلیج دے، دیکھ بھال میں آسان ہو اور جگہ کے مطابق آرام دہ ہو۔ ہونڈا ان تمام معیارات پر پورا اترتا ہے۔ اس کا باکس جیسا ڈیزائن سادہ نظر آتا ہے، لیکن یہ اندر اتنی جگہ فراہم کرتا ہے کہ فیملی آرام سے بیٹھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ شہروں میں گاڑی چلانے کے لیے بہترین ہے کیونکہ اس کا سائز چھوٹا ہے اور پارکنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور چیز جس نے ہونڈا کو صارفین کا اعتماد بڑھانے میں مدد کی وہ کے حصے کے بارے میں اس کی سمجھ ہے۔ جاپان میں چھوٹی کاروں کو ٹیکس اور پارکنگ کی چھوٹ ملتی ہے، اس لیے لوگ جیسی کار کو بڑی ایس یو وی سے زیادہ پریکٹیکل سمجھتے ہیں، یعنی ہونڈا نے یہ کار صارفین کی ضروریات کو سمجھ کر بنائی۔ اب آتے ہیں ہونڈا کی حکمت عملی کی طرف۔ اس کار کو بناتے وقت ہونڈا نے صرف ڈیزائن پر ہی توجہ نہیں دی بلکہ حقیقی زندگی میں لوگوں کو درپیش مسائل پر بھی توجہ مرکوز کی، جیسے کہ چھوٹے گھروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے زیادہ جگہ، چھوٹی سڑکوں اور ٹریفک میں آسانی سے چلنے والی گاڑی، اور ٹیکنالوجی جو کم قیمت میں زیادہ فوائد دیتی ہے۔ ہونڈا نے وقتا فوقتا اپنے نئے ورژنز لانچ کیے جن میں نئے فیچرز، بہتر حفاظت اور معمولی ڈیزائن اپڈیٹس کیے گئے۔ اس سے لوگ بور نہیں ہوتے تھے اور وہ ہر نئے ماڈل میں کچھ نیا ملنے پر خوش ہوتے تھے۔ ہونڈا کے بارے میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ہونڈا سینسنگ جیسی جدید سیفٹی ٹیکنالوجی ہے، یعنی سستی اور چھوٹی کار ہونے کے باوجود اس میں بیک اسسٹ، لین اسسٹ، آٹومیٹک ایمرجنسی بیکنگ جیسی چیزیں دی گئی ہیں جو عموماً مہنگی کاروں میں پائی جاتی ہے۔ اس سے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ کم قیمت پر بھی ہونڈا حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہونڈا کا سروس نیٹ ورک بھی بہت اچھا ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ گاڑی خراب ہونے کی صورت میں بھی سروس آسانی سے مل جائے گی اور یہ زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوگی۔ یہ اعتماد صارفین کو بار بار ہونڈا ان باکس کی طرف کھینچتا ہے۔ اب ایک اور چیز جو کو خاص بناتی ہے وہ ہے اس کا مائلیج۔ جاپان میں پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے لوگ ہمیشہ ایسی کار تلاش کرتے ہیں جو کم پیٹرول سے زیادہ دیر تک چلتی ہے۔ اس معاملے میں بھی بہترین ہے۔ اس کا مائلیج اور ایندھن کی بچت اسے دوسری کاروں سے بہتر بناتی ہے۔ اور آخر کار ہونڈا کی سب سے بڑی چال اس کی صحیح قیمت تھی۔ اس گاڑی کی قیمت اس لیے رکھی گئی تھی کہ یہ ہر متوسط گھرانے کے بجٹ میں آ سکے۔ لوگ شو روم میں جا کر اسے بلا جھجک خرید سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو جاپان میں ہر چوتھی پانچویں کار نظر آئے گی۔ اس میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہونڈا ان باکس میں ایسی کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جس نے اسے دوسری کاروں سے اتنا مختلف اور خاص بنایا؟
बॉक्स नुमा डिजाइन और छोटे साइज के साथ ये कार बहुत सादा नजर आती है, लेकिन इसके अंदर ऐसी खुसूसियात और टेक्नोलॉजी छपी हुई है जो इसे जापान के लोगों की पहली पसंद बनाती है। आइए आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले इसके इंजन की बात करते हैं। होंडा के 660 क्यूबिक सेंटीमीटर 3 सिलेंडर इंजन के साथ आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे इंजन का क्या फायदा, लेकिन ये वो जगह है जहां होंडा की टेक्नोलॉजी हैरतअंगेज है। ये छोटा इंजन बहुत मौसर है। इसका मतलब है कि ये कम पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद भी अच्छा माइलेज देता है। यही नहीं, ये टर्बो चार्ज वर्जन के साथ भी आता है, तो ये इन लोगों के लिए भी अच्छा है जो थोड़ी ज्यादा ताकत चाहते हैं। यानी होंडा ने इसमें तवाज़ुन बरकरार रखा है। माइलेज अच्छी है और कारकर्दगी भी अच्छी है। अब इंजन के साथ साथ इसका गियर बॉक्स भी इसे खास बनाता है। का मतलब है मुसलसल मुतगय्यर ट्रांसमिशन। आसान अल्फाज में ये एक ऐसा गियर सिस्टम है जिसमें आपको गियर शिफ्टिंग महसूस नहीं होगी। गाड़ी बहुत आसानी से चलती है और शहर की ट्रैफिक में बार बार गियर्स तब्दील करने की कोई परेशानी नहीं होती। बहुत से लोग ये वजह बताते हैं कि वो ड्राइविंग को बहुत आसान और आरामदेह समझते हैं। इसके अलावा इन बॉक्स में होंडा की अर्थ ड्रीम्स टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की गई है। ये टेक्नोलॉजी इंजन को हल्का, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा ईंधन की बचत बनाती है। जापान जैसे मुल्क में जहां पेट्रोल महंगा है और लोग माइलेज को बहुत अहमियत देते हैं, ये टेक्नोलॉजी बहुत कारआमद है। अब बात करते हैं इसकी हिफाजती टेक्नोलॉजी के बारे में। होंडा ने इस कार में होंडा सीनिसन नामी टेक्नोलॉजी दी है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है? दरहकीकत ये एक मुकम्मल हिफाजती पैकेज है जिसमें कई जदीद खुसूसियात शामिल हैं। मिसाल के तौर पर कलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम CMBS, यानी अगर कोई आपके सामने अचानक रुक जाए और आप ब्रेक ना लगाएं तो वो खुद ब्रेक लगाता है। लेन कीपिंग असिस्ट सिस्टम, अगर आप लेन से बाहर जा रहे हैं तो ये आपको अलर्ट करता है और स्टीयरिंग को थोड़ा सा मोड़कर गाड़ी को दाएं लेन में रखता है। उनकूली क्रूज कंट्रोल, लंबी सड़क पर गाड़ी अपने सामने वाली गाड़ी की रफ्तार के मुताबिक खुद को एडजस्ट करती रहती है। सड़क की रवानगी में तखफीफ, अगर गाड़ी सड़क से बाहर जाने लगती है तो ये आपको अलर्ट करती है। ये तमाम फीचर्स पहले सिर्फ बड़ी और महंगी कारों में दस्तयाब थे, लेकिन होंडा ने उन्हें एनबॉक्स जैसी सस्ती और छोटी कार में भी दिया है। यही वजह है कि लोग इसे बहुत महफूज और काबिल एतमाद समझते हैं। होंडा एनबॉक्स में एक और हैरत अंगेज चीज है, इसकी मैजिक सीट टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी पिछली सीटों को फोल्ड करके कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर आप ज्यादा सामान रखना चाहते हैं तो सीटें फोल्ड कर लें। यहां तक कि अगर आप लंबी चीजें रखना चाहते हैं तो आप सीटों को मुख्तलिफ तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। ऐसा लचकदार और स्मार्ट इंटीरियर बहुत कम कारों में देखा जाता है। कि एक और बड़ी खुसूसियत इसके अंदर केबन और डिजाइन टेक्नोलॉजी है। बॉक्स जैसा डिजाइन रखने के बावजूद होंडा ने यानी शोर वॉबिशन सख्ती को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। यानी अंदर बैठने से आपको बाहर से ज्यादा शोर नहीं सुनाई देगा और गाड़ी बहुत हमवार महसूस होगी। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले और बैक कैमरा जैसी चीजें भी दी गई हैं जो इसे जदीद और आरामदेह बनाती हैं। एक और चीज जो उसकी टेक्नोलॉजी में छपी हुई है वो है इसका हल्का फुल्का जिस्मानी ढांचा। होंडा ने इसमें हल्की लेकिन मजबूत बॉडी बनाई है जिससे गाड़ी ज्यादा भारी नहीं होती और माइलेज भी बढ़ता है। इसके अलावा ये क्रैश टेस्ट में अच्छा स्कोर करता है जिसकी वजह से लोगों को इसकी हिफाजत पर पूरा भरोसा है। इसमें हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा गया है। इंजन, गियर बॉक्स, सेफ्टी फीचर्स हों या इंटीरियर्स का स्मार्ट डिजाइन, होंडा ने इसे लोगों की हकीकी जरूरियात के मुताबिक बनाया है और महंगी कारों की तरह कम कीमत पर टेक्नोलॉजी फराहम की है। यही वजह है कि लोग इसे खरीद कर न सिर्फ पैसे बचाते हैं बल्कि एक काबिल एतमाद, महफूज और स्मार्ट कार भी हासिल करते हैं। इस बकदौर में लोग पेट्रोल से चलने वाली होंडा एनबॉक्स क्यों खरीद रहे हैं? आजकल हर तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चर्चा है। हर कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च कर रही है और दावा कर रही है कि ये मुस्तकबिल है। लेकिन इसके बावजूद जापान में लोग अब भी होंडा एनबॉक्स जैसी पेट्रोल कारों को तरजीह देते हैं। ऐसा क्यों है? बिजली का दौर होने के बावजूद लोग पेट्रोल से चलने वाले एनबॉक्स पर क्यों भरोसा कर रहे हैं? आइए आपको आसान अल्फाज में समझाते हैं। पहली वजह बैटरी की हद के बारे में तशवीश है।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि एक बार चार्ज होने के बाद ये कितनी दूर जाएंगी। जापान जैसे मुल्क में जहां लोग रोजाना घर से दफ्तर तक कई मुख्तसर सफर करते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, शॉपिंग करते हैं, बैटरी की हद उन्हें खौफजदा करती है। अगर रास्ते में बैटरी खत्म हो जाए और चार्जिंग स्टेशन ना मिले तो मुश्किल हो जाएगी, जबकि पूरे पेट्रोल टैंक के साथ सैकड़ों किलोमीटर बआसानी चल सकता है और पेट्रोल पंप हर जगह दस्तयाब हैं। यही वजह है कि लोग अब भी पेट्रोल वाली गाड़ियों को ज्यादा प्रैक्टिकल समझते हैं। दूसरी बड़ी वजह कीमत है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब भी बहुत महंगी हैं। जो लोग महदूद बजट में गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदना आसान नहीं है, जबकि होंडा एनबॉक्स की कीमत बहुत सस्ती है। यहां तक कि एक मुतवस्सित खानदान भी ज्यादा सोचे समझे बगैर इसे खरीद सकता है और कीमत के साथ साथ इसकी देखभाल भी बहुत सस्ती है। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी खराब हो जाए तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, जबकि पेट्रोल वाली गाड़ियों में ऐसा कोई तनाव नहीं होता। अब सर्विस और काबिल एतमाद के बारे में बात करते हैं। होंडा का सर्विस नेटवर्क पूरे जापान में फैला हुआ है। लोग जानते हैं कि गाड़ी में कोई भी मसला हो तो भी सर्विस कहीं भी आसानी से मिल जाएगी और ये ज्यादा महंगी भी नहीं होगी, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सर्विस के लिए अभी तक नेटवर्क तैयार नहीं है। बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर की टेक्नोलॉजी भी नई है और हर मैकेनिक इसे ठीक नहीं कर सकता। यही वजह है कि लोग पुराने पेट्रोल इंजन को ज्यादा काबिल एतमाद समझते हैं। कि एक और बड़ी खुसूसियत यह है कि यह बहुत ज्यादा ईंधन की बचत है। इसका मतलब है कि यह कम पेट्रोल के साथ भी ज्यादा माइलेज देता है। लोग कहते हैं कि अगर माइलेज अच्छा हो और पेट्रोल की टेंशन ना हो तो इलेक्ट्रिक कार खरीदने का क्या फायदा। होंडा ने मैं अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इसका माइलेज और इंजन दोनों बेहतरीन है। लोगों की एक और दलील यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अभी तक मुकम्मल तजर्बा नहीं किया गया। बैटरी कितने साल चलेगी, सर्द मौसम में कारकर्दगी कैसी रहेगी, इसे चार्ज करने में कितना वक्त लगेगा। पेट्रोल गाड़ियों का निज़ाम जहां बसों से ज़ेरे इस्तेमाल है और ये सब जानते हैं कि ये कैसी कारकर्दगी दिखाती है, लोग होंडा एनबॉक्स जैसे मॉडल पर और भी ज्यादा एतमाद करते हैं, क्योंकि ये बसों से मार्केट में मौजूद है और उसके रिकॉर्ड सबके सामने है। कि कीमत और विश्वसनीयता के साथ साथ लोग इसकी सहूलत और जगह को भी पसंद करते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अक्सर छोटी होती हैं या बड़ी बहुत महंगी होती हैं, लेकिन एनबॉक्स में लोगों को सस्ती गाड़ी मिलती है जिसमें फैमिली आराम से बैठ सकती है, सामान रखा जा सकता है और फिर भी गाड़ी चलाना आसान है। इसके अलावा जापान के लोग अब भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। कई जगहों पर चार्जिंग स्टेशन अब भी कम है। लोगों का कहना है कि जब तक हर जगह चार्जिंग का निज़ाम नहीं बन जाता, पेट्रोल ठीक है। एक और बात यह है कि लोग तब्दीली से थोड़ा डरते हैं। वो लोग जो बचपन से पेट्रोल कारें चलाने के आदी हैं, वो अचानक इलेक्ट्रिक पर जाने से हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ नई परेशानियां भी आएंगी, जबकि होंडा एनबॉक्स जैसी कारें उनके लिए एक जाना पहचाना ऑप्शन है जिस पर वो आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। लोग का इंतखाब कर रहे हैं क्योंकि ये सस्ता, काबिल एतमाद गाड़ी चलाने में आसान है, सर्विस हर जगह दस्तयाब है, अच्छी माइलेज देता है और इसमें कोई बड़ी टेंशन नहीं है। दूसरी जानिब इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब भी महंगी हैं, चार्जिंग का मसला है और बैटरी रेंज का खौफ भी हमेशा रहता है। यही वजह है कि बकदूर आने के बावजूद होंडा एनबॉक्स की मांग में कमी नहीं आई, बल्कि लोगों का कहना है कि जब तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के तमाम सिस्टम मुकम्मल तौर पर सीट नहीं हो जाते, होंडा एनबॉक्स जैसी पेट्रोल गाड़ियां लोगों की पहली पसंद रहेंगी। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए होंडा ने इसे मुसलसल बेहतर करना शुरू कर दिया है, जो टोयोटा की कौन सी खामियां के लिए बाइस फखर बन गईं। आज जापान की सड़कों के हर कोने पर होंडा देखी जा सकती है, और यही नहीं बल्कि ये मुसलसल कई सालों से जापान की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली कार बनी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी होने के बावजूद होंडा एनबॉक्स इतनी मकबूल कैसे हुई। क्या टोयोटा की कुछ खामियां थीं जो के लिए बाइस बनी? पहली खामी जो टोयोटा ने की वो कीमतों की गलती थी। टोयोटा ने हमेशा बड़ी और प्रीमियम कारों पर तवज्जो मरकूज की है। उनकी गाड़ियों की कीमत थोड़ी ज्यादा है। जापान में ज्यादातर लोग मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं और उनकी सबसे बड़ी फिक्र कम कीमत पर अच्छी गाड़ी हासिल करना है। ऐसी सूरत हाल में होंडा एनबॉक्स ने सस्ती कीमत पर एक गाड़ी दी जिसमें ज्यादा जगह, अच्छी माइलेज और बेहतरीन खुसूसियात थीं।
जबकि टोयोटा की छोटी कारें भी एनबॉक्स की तरह किफ़ायत-शेयारी और कुशादा नहीं थीं। यही वजह है कि लोग होंडा की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। दूसरी कमी टोयोटा की इलेक्ट्रिक फोकस थी। पिछले कुछ सालों में टोयोटा ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर ज्यादा तवज्जो देना शुरू की है। उनका ख्याल था कि लोग जल्द ही बिजली की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जापान के लोग अभी मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। वो अब भी पेट्रोल गाड़ियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि वहां चार्जिंग स्टेशन कम है और बैटरी की हद का खौफ हमेशा रहता है। जबकि होंडा ने इस बात को समझा और पेट्रोल इंजन में ही को इतना अच्छा बना दिया कि लोगों ने इलेक्ट्रिक की भी परवाह नहीं की। तीसरी कमी ये थी कि टोयोटा की छोटी कारों में इतनी जगह और लचक नहीं थी जितनी कि होंडा पेश करती है। का बॉक्स जैसा डिजाइन सादा लग सकता है, लेकिन ये अंदर से बहुत कुशादा और आरामदेह है। अपनी मैजिक सीट टेक्नोलॉजी की वजह से सीटों को कई तरीकों से फोल्ड करके ज्यादा सामान रखा जा सकता है, जबकि टोयोटा की छोटी कारें इतनी लचक और जगह नहीं देती है। चौथी खामी ये थी कि टोयोटा की छोटी कारों की खुसूसियात की तरह जदीद नहीं थी। होंडा ने में हांडा सेंसिंग जैसी हिफाजती खुसूसियात फराहम की जो पहले महंगी कारों में दस्तयाब थीं। जहां टोयोटा की छोटी कारें अभी बुनियादी फीचर्स पर चल रही थीं, लोग सोचने लगे कि जब होंडा एक सस्ती गाड़ी में इतने फीचर्स दे रही है तो फिर वही खरीद क्यों नहीं लेती। टोयोटा की एक और गलती ये थी कि इसने शहर की ट्रैफिक और जापानी अवाम की हकीकी ज़रूरियात को पूरी तरह नहीं समझा। लोग एक छोटी, हल्की, सस्ती और ज्यादा ईंधन वाली गाड़ी चाहते थे जिसमें घर वाले भी आराम से बैठ सकें, लेकिन टोयोटा बड़ी हाइब्रिड कारों और इलेक्ट्रिक इख्तिरा पर ज्यादा तवज्जो दे रहा था। होंडा ने इस खला को अच्छी तरह समझा और इसे के जरिए पुर किया। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि टोयोटा की कीमतों में गलती इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड पर ज्यादा तवज्जो, छोटी कारों में जगह और फीचर्स की कमी और सार्फिन की हकीकी ज़रूरियात को ना समझना, ये वो खामियां थीं जिनका फायदा होंडा एनबॉक्स ने उठाया। आलमी मंडी पर असरात। जापान में होंडा की कामयाबी ने न सिर्फ वहां की मार्केट में हलचल मचा दी, बल्कि इसका असर आहिस्ता आहिस्ता आलमी मार्केट पर भी देखा जा रहा है। आखिरकार जब छोटी नजर आने वाली गाड़ी बसों से नंबर 1 फरोख्त हो रही हो तो दूसरी कंपनियां और ममालिक भी इस पर गौर करने लगते हैं कि इसमें क्या खास बात है। होंडा एनबॉक्स ने साबित कर दिया है कि लोग अब बड़ी गाड़ियों के मुकाबले स्मार्ट, सस्ती और प्रैक्टिकल गाड़ियों पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। सबसे पहले आलमी रुझान पर असरात के बारे में बात करते हैं। दुनिया भर में लोग अब ज्यादा ईंधन मुअस्सर और कम्पैक्ट कारों को पसंद करने लगे हैं, खास तौर पर बड़े शहरों में जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और पार्किंग एक बड़ा मसला है। ऐसे में एनबॉक्स जैसी बॉक्स नुमा और छोटी कार जिसमें काफी जगह होती है और चलाने में आसानी होती है, ने एक नया ट्रेंड सीट करना शुरू किया। यूरोप के कई शहरों में अब कंपनियों ने इस तस्वुर की तरह कारें बनाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि वहां भी लोग छोटी, सस्ती और कम कीमत गाड़ियों की मांग कर रहे हैं। ने आलमी ऑटो कंपनियों को एक बड़ा सबक सिखाया कि हर कोई एसयूवी या इलेक्ट्रिक कार नहीं चाहता। बहुत से लोग अब भी ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो बजट में हो, सस्ती सर्विस हो, अच्छा माइलेज दे और शहर के लिए मौजू हो। यही वजह है कि यूरोप और एशिया की बहुत सी मार्केटों में कंपनियों ने छोटे जैसे डिजाइन पर काम शुरू कर दिया। दूसरी चीज जो आलमी मंडी को मुतासिर कर रही है वो कीमत का दबाव है। एनबॉक्स की सस्ती कीमत को देखकर दीगर कंपनियों पर भी दबाव बढ़ गया है कि वो ऐसी कारें बनाएं जो कम कीमत पर ज्यादा सहूलियात फराहम करें। खास तौर पर भारत, इंडोनेशिया, फिलिपाइन जैसे उभरते हुए ममालिक में लोग अब भी सस्ती कारों की तलाश में हैं। ऐसे में इन ममालिक में जैसी कारों का तस्वुर भी आहिस्ता आहिस्ता मकबूल होता जा रहा है। तीसरी चीज जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है वो है इलेक्ट्रिक मार्केट पर असरात। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुझान यकीनन बढ़ रहा है, लेकिन एनबॉक्स ने जाहिर किया है कि पेट्रोल वाली स्मार्ट गाड़ियों की मांग अब भी बरकरार रहेगी। लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुकम्मल एतमाद नहीं कर पाते, खास तौर पर बैटरी की हद और चार्जिंग के मसाइल की वजह से। अब बहुत सी कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ ऐसी छोटी पेट्रोल गाड़ियों पर काम कर रही है। होंडा एनबॉक्स की कामयाबी का एक और असर डिजाइन और जिद्दत पर तवज्जो है। पहले लोग समझते थे कि छोटी गाड़ियों में बहुत से फीचर्स नहीं दिए जा सकते, लेकिन एनबॉक्स ने साबित कर दिया है कि छोटी गाड़ियों में भी हिफाजत, जगह और आराम के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दूसरी कंपनियों ने भी छोटी गाड़ियों में बड़े फीचर देना शुरू कर दिए हैं। एनबॉक्स की वजह से आलमी मार्केट में होंडा का इमेज भी मजबूत हुआ है।
لوگ اب ہونڈا کو صرف سپورٹس کار بائک کمپنی ہی نہیں بلکہ ایک ایسی کمپنی سمجھتے ہیں جو عام آدمی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے گاڑیاں بناتی ہے۔ اس سے دنیا بھر میں ہونڈا کی برانڈ ویلیو میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کا اثر امریکہ اور یورپ جیسی بڑی منڈیوں میں بھی دیکھا گیا۔ وہاں بھی لوگوں نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا ہے کہ کیا چھوٹے ڈبوں کی شکل والی گاڑیاں زیادہ عملی ہیں؟ امریکہ میں اب تک لوگ ایس یو وی کے دیوانے تھے، لیکن بڑھتی ہوئی قیمتوں اور پٹرول کے اخراجات نے وہاں کے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب وہاں بھی مائکرو کاروں اور کمپیکٹ گاڑیوں کا رجحان شروع ہو رہا ہے۔ این باکس جیسی گاڑیوں نے عالمی مارکیٹ میں ایک اور چیز، معیشت اور ماحول دوست سوچ کو فروغ دیا ہے۔ لوگ اب زیادہ ایندھن سے چلنے والی اور ہلکی گاڑیوں کو پسند کرنے لگے ہیں۔ اس سے نہ صرف ان کے اخراجات کم ہوتے ہیں بلکہ ماحولیات کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسی کاروں کی مانگ نے ثابت کر دیا ہے کہ مارکیٹ میں ہر گاہک ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر ملک کے لوگ اپنی مختلف ضروریات کے مطابق گاڑیاں خریدتے ہیں۔ جو جاپان میں کام کر رہا ہے وہ انڈیا، انڈونیشیا، یورپ میں بھی کام کر سکتا ہے۔ صرف صحیح وقت اور صحیح قیمتوں کی ضرورت ہے۔ ہونڈا این باکس نے عالمی مارکیٹ میں بہت سی چیزیں بدل دی ہیں۔ چھوٹی کاروں کے بارے میں لوگوں کی سوچ بدل گئی۔ کمپنیوں کے لیے قیمت اور خصوصیات میں توازن رکھنا ایک چیلنج بن گیا، اور الیکٹرک کاروں کے درمیان بھی پیٹرول کاروں کی مانگ کو برقرار رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب کئی بڑی کمپنیاں بھی سے سیکھ کر اسی طرح کی کاروں کے تصور پر کام کر رہی ہیں۔ لوگ جب بھی کار خریدنے جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں پہلے دو سوال آتے ہیں کہ کیا مائلج ہے اور کیا مینٹیننس بھاری نہیں ہوگا۔ ہونڈا این باکس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دونوں سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے۔ اس کے مائلج کی بات کریں تو چھوٹی کار ہونے کی وجہ سے یہ بہت ہلکی ہے، اور اس میں 660 کیوبک سینٹی میٹر کا چھوٹا لیکن مؤثر انجن نصب کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے شہر کی ٹریفک میں بھی پیٹرول کی بچت ہوتی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ این باکس آسانی سے 20 سے 25 کلومیٹر فی لیٹر کا مائلج دیتا ہے۔ ایسے میں جاپان جیسے ملک میں جہاں پیٹرول مہنگا ہے، لوگ اسے بڑی راحت سمجھتے ہیں۔ دیکھ بھال کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ کار ہونڈا کے معیار کا ثبوت ہے۔ اس کا انجن سادہ اور قابل اعتماد ہے، کوئی الیکٹرانک پریشانیاں نہیں ہیں، کوئی بھاری دیکھ بھال نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی سروس کے ساتھ گاڑی سالوں تک آسانی سے چلتی ہے۔ اس کے پرزہ جات بھی آسانی سے دستیاب ہیں، اور سروس سینٹرز ہر شہر اور قصبے میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اسے بغیر کسی فکر کے خریدتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہونڈا ایک ایسی کار ہے جو روزمرہ کے استعمال کے لیے بہترین ہے۔ گھر، دفتر، بازار، بچوں کو اسکول چھوڑنا، ہر چیز کے لیے بہترین ساتھی۔ اب بات کرتے ہیں جاپان میں لوگوں کی بدلتی ترجیحات کے بارے میں۔ پہلے جاپان میں لوگ بڑی اور بھاری گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے تھے، لیکن جیسے جیسے شہروں میں جگہ کم ہوتی گئی، ٹریفک بڑھتا گیا اور پیٹرول مہنگا ہوتا گیا، لوگوں کی سوچ بدلنے لگی۔ اب وہ ایک ایسی کار چاہتے ہیں جو آسانی سے کھڑی ہو، اچھا مائلج دے اور اس کی دیکھ بھال بھی کم ہو۔ ہونڈا این باکس نے لوگوں کی اس سوچ کو سمجھا اور خود کو مکمل طور پر ان کی ضروریات کے مطابق ڈھال لیا۔ آج لوگ زیادہ عملی اور ہوشیار انتخاب کر رہے ہیں۔ وہ شکل دیکھنے کے بجائے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی گاڑی ان کے روزمرہ کے اخراجات اور مسائل کو کم کر سکتی ہے، اور یہ سوچ کے لیے باعث فخر بن گئی۔ اب آخر میں سب سے اہم سوال، ٹویوٹا اور دیگر کمپنیوں کو ہونڈا این باکس کی کامیابی سے کیا سیکھنا چاہیے؟ اس کار نے پوری دنیا کی آٹو انڈسٹری کو یہ سبق سکھایا کہ گاڑی بنانے کے لیے صرف نئی ٹیکنالوجی اور مہنگے فیچرز کافی نہیں ہے، اصل چیز وہی ہے جو گاہک چاہتا ہے۔ ہونڈا نے جاپانی عوام کی اصل ضرورت کو سمجھا، ایک سستی، ہلکی، قابل بھروسہ اور سستی کار، جبکہ ٹویوٹا اور بہت سی دوسری کمپنیاں بڑے منصوبوں اور ہائی ٹیک کاروں پر توجہ مرکوز کر رہی تھیں۔ انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر صارف بڑی کار نہیں چاہتا۔ ہونڈا این باکس کی کامیابی نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ چھوٹے شہروں اور متوسط طبقے کے صارفین کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان لوگوں کے لیے ایک سستی اور پریکٹیکل کار ہی اصل لگژری ہے۔ اب دوسری کمپنیوں کو بھی اپنے ماڈلز میں سادگی اور سستی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ لہذا مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہونڈا این باکس نے دکھایا ہے کہ لوگ اب زیادہ سمجھداری سے فیصلے کر رہے ہیں۔ وہ شو آف نہیں چاہتے، وہ اپنے پیسے کا صحیح استعمال چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ این باکس نے لاکھوں دل جیت لیے اور ٹویوٹا جیسی بڑی کمپنی کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں
اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی تاکہ اب سب سے پہلے ایسی دلچسپ اور مفید چیزیں دیکھ سکیں۔